about existence of an imaginary terrorist camp narrative on 7th of May 2025. India in the early hours of 8th May 2025 launched a highly provocative and dangerously escalatory attack, firing 4 projectiles, most probably missile, targeting Pakistani territory. In a deeply insidious and sinister act, 3 projectiles were deliberately dropped at Amritsar, the capital of Indian Punjab, while the 4th projectile, which entered in Pakistan's airspace, was neutralized by Pakistan's air defense, and its debris fell at Dinga, which is inside Pakistan. This malicious folly, consistent with the modus operandi of the ruling Hindutva regime, appears designed to falsely implicate Pakistan for targeting Indian civilians and inciting anti-Pakistan sentiment among the Punjabi Sikh population to conveniently externalize the rising communal tensions within India. Knowing the deep-rooted, centuries-old cultural affinity between Pakistan's long history of communal persecution of both at the hands of extremist Hindutva majority and the existence of a relation of deep respect between both Punjabs, Pakistan categorically denies any intention or action that will endanger civilian populations in Indian Punjab. Unlike the divisive policies of the Indian leadership, Pakistan remains firmly committed to safeguarding innocent lives and regional harmony. We deeply emphasize with the civilian population, particularly the Sikh community of Indian Punjab, as their lives were endangered by the India through malicious use of projectiles, most probably missiles, to achieve sinister political ends. Conquered with the firing of projectiles, most probably missiles, several armed Indian drones also violated Pakistan airspace by crossing over the international border at multiple places, targeted civilians, martyring 1 and injuring 4, and made attempts to attack military installations, injuring 4 army personnel. One of these drones also struck the Rawalpindi Cricket Stadium, venue for the ongoing Pakistan Cricket Super League, in deliberate attempt to target domestic and foreign cricket players. These drones have been neutralized. Despite repeated provocations, Pakistan, being a responsible state, has so far exercised strategic restraint, acted with maturity, and limited its response strictly to self-defense in accordance with international law and the UN Charter. Nonetheless, in view of this grave and unlawful aggression of firing projectiles, most probably missiles, inside its territory and violating its airspace, Pakistan reserves the right to respond to India at a time, place and manner of its choosing. मैं अपने हमवतन बहन भाइयों को ये अर्ज करूंगा कि आपने देखा कि जिस बहादुरी के साथ पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने इंडिया के 5 फाइटर जेट्स को गिराया, 2 UAVs को गिराया, वो शायद इंडिया में हजम नहीं हो सका। आज एक पॉलिटिकल बेस्ड एंड मोटिवेटेड स्टेटमेंट इशू की कि कल रात पाकिस्तान ने मुख्तलिफ इंडियन मिलिट्री इंस्टॉलेशन और मिलिट्री जगह के ऊपर अटैक किया।
इट्स अ बिग लाई, बहुत बड़ा झूठ है। और उस झूठ बोलने की वजह नजर आती है। आज जो पाकिस्तान के अंदर, जिसका मैंने अभी इंग्लिश में अर्ज किया ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी पता चले, जो उन्होंने आज जो काम किए हैं, पाकिस्तान इस्लामाबाद से लेके साउथ ऑफ पाकिस्तान तक, कराची तक, करीबन 2 दर्जन जगह के ऊपर, वो शर्मनाक, अफसोसनाक और काबिल मुजम्मत है। गालबन अपनी खिफत मिटाने के लिए जो उनके साथ हुआ 6 और 7 की दरमियानी रात को, ये एक कॉन्कॉक्टेड स्टोरी बनाई गई कि पाकिस्तान ने कल रात फिर इंडिया के अंदर एक किस्म के अटैक्स किए हैं इन वायलेशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, और उसके नतीजे में आज जो कुछ हुआ है उसके नतीजे में हम कर रहे हैं। व्हाट अ शेम। सो मैं समझता हूं कि मेरे बहादुर बहन भाइयों पाकिस्तानियों, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी आर्म्ड फोर्सेस आर फुली अलर्ट। आपने देखा कि जिस बहादुरी के साथ आर्म्ड फोर्सेस ने और पर्टिकुलरली पाकिस्तान की एयरफोर्स ने 75 से 80 इंडियन फाइटर जेट्स को उसका मुकाबला किया और 5 को जमीन बोस किया और 2 यूएवीज गिराए, तो वो एक जीती जागती एक आपके पास मिसाल है जो कि अभी चंद घंटे, 36 घंटे पहले गुजरी है। तो इंशाअल्लाह आपके फौजी जवान, आपकी एयरफोर्स, आपकी नेवी, आपकी हुकूमत सब अलर्ट है। अगर किसी किस्म का कोई एडवेंचर इंडिया करेगा, तो शुरू में मैंने अर्ज किया था कि जब उन्होंने पहली दफ़ा 23 की रात को जो उन्होंने अनाउंसमेंट की थी अपनी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के बाद, हमारे खिलाफ हमारे मिशंस को कम किया, हमारे जो मिलिट्री और नेवल और जो एयरफोर्स अटैचीज को पर्सोना नॉन ग्रेटा किया, पाकिस्तानियों के वीज़े कैंसिल किए और बॉर्डर अटारी का बंद किया, तो वो हिसाब हमने 24 की सुबह चुका दिया था। जितना उस वक्त इंटरनेशनल मीडिया बात कर रहा था, उसको मैंने यही अर्ज की थी कि हम टिट फॉर टैट, कल हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है, वो हम इसका जवाब देंगे। जो उन्होंने बहुत ही घटिया और अनाउंस किया कि हम उसको इन अबेंस कर रहे हैं, कोई इंटरनेशनल कानून में इस अबेंस की कोई वैल्यू नहीं है। और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने अनाउंस किया था कि हम इसको वी विल ट्रीट इट एज एक्ट ऑफ वॉर, ऐलान जंग इसको तस्वर करेंगे। उनके जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस आई थी उसका मुंह तोड़ जवाब भेज दिया गया है 24 अप्रैल को जो उन्होंने भेजी थी। और मैं समझता हूं कि आप अपने बहादुर आर्म्ड फोर्सेस के लोगों के लिए आप दुआ में याद रखें, जैसे अल्लाह ताला ने अपने फजल करम से जस्ट 36 घंटे पहले जो कुछ इतना बड़ा एक मुकाबला हुआ और पाकिस्तान को अल्लाह ने इज्जत और अल्लाह ताला ने आर्म्ड फोर्सेस को सुरखरू किया, इंशाअल्लाह आइंदा भी वो आपको माजी की तरह मायूस नहीं करेंगे। बी ब्रेव, खुश रहें, दुआ करें, अल्लाह पे भरोसा रखें। हामीम ला युनसरून, अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों और कौमों के लिए ये कुरान हकीम में कहा है कि वेरली इन लोगों के लिए कोई विक्ट्री नहीं है। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान विल बी विक्टोरियस अगेन। किसी किस्म की एडवेंचरिज्म उसको उसका भरपूर उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मैं जनरल साहब आपसे गुजारिश करूंगा आप भी ज़रा शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये जो 4 पॉइंट्स हैं, आई विल टेक गो वन बाय वन। फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट दिस प्रोजेक्टाइल दैट एंटर्ड पाकिस्तान एयर स्पेस लास्ट नाइट। आई लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड दिस स्लाइड। अगर आप इस स्लाइड की तरफ देखें तो ये आदमपुर से ये 4 प्रोजेक्टाइल फायर हुए। एज यू कैन सी 3 जो प्रोजेक्टाइल हैं ये इन्होंने खुद टारगेट किए अमृतसर के जनरल एरिया में, एंड वन ऑफ दैट प्रोजेक्टाइल इट स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स, इधर से इसने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया और ये डींगा के
ऊपर आके इट वाज टेकन डाउन। मैं आपको ये बताना चाहूँगा अगली स्लाइड में कि वेन एवर ये आपकी जो आर्म फोर्सेज हैं, इनकी विजिलेंस, एनीथिंग दैट मूव्स, एनीथिंग दैट कम्स फ्रॉम द ईस्ट, वी हैव एन आई ऑन इट। ये आप अगली स्लाइड में देखिएगा, द इलेक्ट्रॉनिक इमेज, आगे चलिएगा। अब ये देखेंगे आप, ये जब आ रहा था, इसको देखते जाइएगा सर्कल के अंदर, तो द वन दैट वाज कमिंग अगेंस्ट टुवर्ड्स पाकिस्तान, so we were watching it very carefully, and this is where we are seeing it. Now here it crosses the international border, and so isko dekh rahe hain, and we are watching its trajectory, its height, and the weapon systems are there to take it out. अब वो चूंकि ये किस जगह पे इसको टेक आउट करना है, now this is moving towards, एंड ये जो रेड पॉइंट है एंड पे आप देख रहे हैं यहां पे, इस जगह पे, देन इट वाज न्यूट्रलाइज्ड बाय द एयर डिफेंस एसेट्स। तो जो ऑनरेबल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कहा, एनीथिंग दैट इज मूविंग, एनीथिंग दैट इज कमिंग, इट लीव्स, इट इज बीइंग मॉनिटर्ड, इट इज बीइंग टेकन आउट। तो ये जो प्रोजेक्टाइल है, वंस इट रीच्ड ओवर देयर एट अराउंड डिंगा, तो दिस प्लेस इट वॉज टेकन आउट एंड देयर इट वेंट ऑफ। अब मैं आपको अगला दिखाता हूं, नेक्स्ट स्लाइड पे जाइएगा। ये उसकी डेब्री है, दिस इज दैट प्रोजेक्टाइल। इसकी अभी जो है अपना फोरेंसिक हो रही है, सो दैट्स व्हाई वी आर वेरी केयरफुली यूजिंग दिस वर्ड प्रोजेक्टाइल, बिकॉज वी डू आवर वर्क वेरी डिलिबरेटली। इट अपीयर्स टू बी अपरेंटली ये नजर, ये मिसाइल है, लेकिन ये कौन सा है, किस टाइप का है, वो फोरेंसिक हो रही है, वी आर इन दैट प्रोसेस। सो दिस इज व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट। 3 इस तरह के प्रोजेक्टाइल, दे इंटेंटली टारगेटेड देयर ओन टेरिटरी एट अमृतसर। उसकी जो इंटेंट है, वजह है, वो ऑनरेबल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने आपके सामने पेश कर दी है। तो इसका फोरेंसिक करके जो फर्दर डिटेल्स हैं कि इसकी क्या टाइप है, क्या चीज़ है। द सेकेंड थिंग दैट आई वांट टू एड्रेस इज दी, जो एक इंडिया में एक हाइप क्रिएट की हुई है उन्होंने कल से, कि 15 लोकेशंस पे पाकिस्तान ने अटैक किया। नाउ ये जो 15 लोकेशंस पे वो जो कह रहे हैं अटैक किया है, इट इज सच ए फंटास्टिक एंड कुक्ड अप स्टोरी कि you can just laugh about it. I'll ask few questions on this. The first question is कि is the Indian government and the armed forces, are they living in 18th century or 21st century? Because in 21st century, every projectile leaves a digital trace and signature. ये भी आपने देखा है, जब एक्चुअल में कोई चीज आपकी तरफ आती है, तो दिस इज हाउ इन रियल टाइम वो मॉनिटर हो रही होती है, उसका एक डिजिटल सिग्नेचर होता है। क्योंकि 21st सेंचुरी में तो ऐसे ही है, वहां ऐसे नहीं हो सकता कि आप कोई भी बैठ के स्टोरी को कप कर लें। दूसरा सवाल यह है कि when this Indian government is going to transit from the theatrics and cinema to the actual world in which we are living, ये कब होगा? And related to that is the question that ये जो एक fascination है phantom strikes की, we saw that in 2016 जब उड़ी हुआ था, उसके बाद भी एक फैंटम स्ट्राइक हुई थी, which on ground nothing happened, but a strike was claimed. तो जो आज आप ये स्टोरी उनसे सुन रहे हैं, we can very conveniently call it a phantom defense that they have mounted. तो that was a phantom strike. अब वो रिवर्स कर रहे हैं कि हमने इतना शानदार डिफेंस किया है, हमारी एयर डिफेंस ने और बाकियों ने, कि वी हैव टेकन आउट 15 जगहों पे पाकिस्तान ने अटैक किया और हमने देखें ले लिया। अब ये जो उसकी वो सबूत दिखा रहे हैं,
ये आप अगर स्क्रीन पे देखें तो ये दिखा रहे हैं, ये जो मुख्तलिफ जगहों पे वो दिखा रहे हैं कि जी ये अपना ये प्रोजेक्टाइल्स जो पाकिस्तान ने भेजे, मिसाइल्स भेजे और वो इस फील्ड्स में आके देखें यहाँ लगे हैं। ये ड्राई फील्ड्स हैं गंदम की, सट्टे की, कम से कम इसको आग ही लगा देते थोड़ी सी रॉयल्टी देने के लिए, कि वो उठा के वहाँ पीसेस रख दिए हैं और फिर उसकी तस्वीरें लेके और फिल्में बना के नशर कर रहे हैं। इसलिए हम ये सवाल करते हैं कि रियल वर्ल्ड में सिनेमा से, थिएटर से निकल के एक्चुअल वर्ल्ड में कब आएंगे? और अगर आपका इतना ही शानदार ये एयर डिफेंस सिस्टम है कि 15 जगह से अटैक हो रहा है जिसका कोई सिग्नेचर नहीं है, जिसके लिए ये कुछ पिक्चर्स हैं जो कि डाल डाल के बार बार दिखा के, पता नहीं किस चीज़ की उठा के ये पिक्चर्स इन्होंने कहाँ से उठा के ये बनाई हैं, और एक ड्रामा शुरू हुआ है। तो अगर इतना ही शानदार आपका सिस्टम है तो ये 2 दिन पुरानी बात है, 6-7 की रात आप अपने टाइम और प्लेस ऑफ चूजिंग पे आए थे ना? आपने अपना पूरा एयर डिफेंस लगाया हुआ था ना? आपको पता था कि जब आप हमला करेंगे तो जवाब आएगा। तो ये 5 आपके जहाज कैसे गिर गए? फिर नहीं गिरने चाहिए थे। आपके मुल्क में तो जो चीज आती है आप तो उसको न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। रात को आपने 15 जगहों पे न्यूट्रलाइज कर लिया। तो उस वक्त तो आपको पता था कि इस टाइम पे हमने जाना है, सारी चीजें ऑन थी, एवरीथिंग वाज लिट अप, तो रोक लेते उस वक्त भी। सो इसलिए ये ड्रामा कम करने, इससे जो मकासद हासिल करने हैं अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, पता नहीं किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, उसको बराए मेहरबानी उससे इज्तनाब करें। ये जो वॉर हिस्टेरिया क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे थोड़ा सा ख्याल रखें, इससे इज्तनाब करें। और ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये उनको भी अच्छी तरह पता है कि जब पाकिस्तान अपनी टाइम, प्लेस और अपने मीन्स से चूजिंग के साथ जब हमला करेगा, अगर वो हम जब व्हेन पाकिस्तान विल स्ट्राइक, तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की। द होल वर्ल्ड विल कम टू नो, इट्स रेवरवेशंस विल बी फेल्ट एवरीवेयर, कि उन्होंने बताना है कि जी आज हमला हो गया, और फिर जो सा बार बार चलाई जाना ताकि कोई सुन ले, यार ये देखे पाकिस्तान ने हमला कर दिया। तो वी आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन देयर मीडिया टू टेल देम कि पाकिस्तान ने हमला किया, कितने किए, क्या किए। वो नजर भी आएगा, उसकी गूंज भी सुनाई देगी। द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू एड्रेस इज दी, जो ऑनरेबल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने बात की, सुबह मैंने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में बात की थी, दैट इज अबाउट दिस स्वार्म ड्रोन अटैक ऑफ द हार्पी एंड हेरोन, जो इजराइल ओरिजिन हैं। जो मैंने आपको पहले अर्ज किया कि जो भी चीज पाकिस्तान की तरफ आती है उसमें हमारी बराबर नजर होती है। ये अब आप देखें, ये वो वन ऑफ दैट ड्रोन है। अब ये वो ड्रोन हैं जो कि, और ये देखें, ये आ रहा है एंड इट इज बीइंग वॉच्ड, ये नजर आ रहा है, ये जा रहा है। समझने का मतलब ये है, द पॉइंट टू अंडरस्टैंड हियर इज कि ये जो ड्रोन्स हैं ये बड़े छोटे क्रॉस सेक्शन के हैं। वो आरसीएस रडार क्रॉस सेक्शन का बड़ा थोड़ा है। जिस तरह ये राफेल जो सा है, ये 4.5 जनरेशन बड़ा सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट है, तो ये स्मॉल जो स्लोअर मूविंग ड्रोन्स में ये बहुत छोटे हैं एंड इज एज्यूम्ड कि ये पिक नहीं होंगे। ये देखें आपके सामने पिक हो रहे, उनको हम पिक करते हैं, नजर आ रहे थे, देखे गए, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। अब जब वो आए तो उनको कैसे एंगेज करना है उसका एक तरीका है। एक स्लोअर मूविंग टारगेट को जो कि खास स्पीड में और स्पेशली विच इज इन दी अर्बन एरियाज वहां पे है, फिर आपकी कमर्शियल फ्लाइंग हो रही है, जहाज जा रहे हैं, कौन सा वेपन चॉइस करनी है, कब करनी है, उसको किस तरह किल करना है, देयर आर मेथड्स टू इट, देयर इज एन ऑपरेशनल methodology to that, there is a reasoning to that. उसका एंड रिजल्ट ये है कि 29 so far drones have been neutralized. So मैंने आपको 25 बताए थे, another 4, 29. Only one managed to partially engage its target जिसके लिए आया था ये, और उसमें
थोड़ा सा इक्विपमेंट डैमेज हुआ है और 4 हमारे फौजी जो भाई हैं वो उसमें ज़ख्मी हैं। हाउएवर ये जो दुश्मन है, बिकॉज इट डजंट डिस्टिंग्विश बिटवीन दी मिलिट्री एंड सिविल, इट डजंट डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये आपके सामने नज़र आ रहा है, बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, औरत है, मर्द है, तो उसमें हमारे सिविलियंस जोन से हैं, उसमें जो हमारे पास अभी तक की इतलात हैं 3 शहादतें हुई हैं और 4 ज़ख्मी। मैं आपकी तवज्जो जो सी है, तो यू विल बी एबल टू सी दी रेमनेंट्स ऑफ ये जो मलबा है जो मुख्तलिफ जगहों से उठाया गया है ऑफ दिस ड्रोन्स, हार्पी और हेरोन के ये ड्रोन जो इसराइली ड्रोन्स हैं, ये फ़र्क 6 और 7 की और 7 और 8 की रात में इतना है कि 6 और 7 की रात को ये मलबा उन्होंने ख़ुद उठाया था, इस बार ये हमने जमा किया उनके लिए। तो 6-7 पे जो जहाज़ों का मलबा था उन्हें ख़ुद उठाना पड़ा। आपने देखा होगा मीडिया में, सोशल मीडिया में, कि मुख्तलिफ जगह से अपने जहाज़ों का मलबा जमा करते फिर रहे हैं। तो 7-8 को ये आज जो ये जहाज़ ये आए हैं ड्रोन, इनका हमें मलबा हमने खुद जमा कर लिया। और ये ऐसे ही फ़र्क है कि 2019 में चाय इधर आके पी थी, 6 और 7 की रात को हमने चाय वहाँ भिजवाई है उनको, तो ये मलबा हमने खुद इकट्ठा किया उनके लिए। आगे जो सा है, अब प्रॉब्लम ये आ रही है उनको कि और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि वन ड्रोन जो सा है, दे ट्राई टू गो आफ्टर द होली प्लेस ऑफ द सिख एट द ननकाना साहब। दिस इज abhorrent, अनएक्सेप्टेबल। कल भी हमने अर्ज किया था कि कौन सा दीन, कौन सी इंसानियत, कौन सा मज़हब इजाज़त देता है कि आप मसाजिद को, इबादत गाहों को, आप मुक़द्दस किताबों को हिट करें। वी सॉ इट टुडे कि वहाँ पे उन्होंने ननकाना साहब की तरफ एक डायरेक्ट किया था एक ड्रोन, विच वी टुक आउट। द क्वेश्चन इज दैट व्हाई दे आर डूइंग इट। लास्टली वी मस्ट अंडरस्टैंड कि देखें, जो उन्होंने स्टार्टिंग फ्रॉम दी 22 अप्रैल के वो जो एक इवेंट था, द वर्ल्ड डिडंट बाय इट, द इंटरनेशनल कम्युनिटी डिडंट बाय इट, कि ये इसका एविडेंस, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बड़ी अच्छी बात की कि इसका एविडेंस लेके आए और न्यूट्रल है, एक्सपर्ट है, so कोई मॉरल ग्राउंड नहीं। अब उस पर जब अटैक करते हैं, उस अटैक पे जवाब जाता है। उसके बाद जो सा है, जब समझ नहीं आती कि वो जवाब गया, वो एयर में भी गया, वो उनके ड्रोन्स भी उड़े उस दिन, वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी गया, तो कोई रास्ता है। तो अब उन्होंने कहा कि हम ये फैंटम डिफेंस लॉन्च कर देते हैं, जो कि थोड़ा भी जो समझ रखता है, अकल रखता है, वो उसको वो इस कि ये क्या अजीब सी बात कर रहे हैं। उसके बाद जो सा है, दे कम आउट विद दिस फंटास्टिक आइडियाज़ कि हम ये ड्रोन भेज देते हैं। वो सारे के सारे जो से आपके सामने पड़े हुए हैं, पीसेज में, टोटो में। तो इशू ये है कि इन टुडेज वर्ल्ड परहैप्स द सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सेज दैट दे आर गेटिंग ऑन डेली एंड आवरली बेसिस, इस हजीमत से, इस शर्म से वो कैसे निकलें। परहैप्स दैट्स द रीज़न जो इनको इधर पुश कर रही है। और लास्टली मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप वहाँ देखें तो आपको उनके मीडिया में, उनकी सोसाइटी में वो एक इंजीनियर्ड वॉर हिस्टेरिया नज़र आ रहा है। ड्रिल्स की जा रही हैं, ये किया जा रहा है। इधर पाकिस्तान में जो लोग हैं बिल्कुल नॉर्मल बैठे हैं। ये बैटल हार्डन नेशन भी है। हम 20 साल से सारे के सारे, इससे ज़्यादा अरसे से फितना और ख्वारिज, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं। हम ईमान की कुव्वत से अल्लाह ने हमें बख्शा हुआ है। तो दे कांट अंडरस्टैंड कि यहाँ तो लोग हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, तो लोगों को परेशान करने के लिए, सोसाइटी में इज़्तिराब डराने के लिए चलो शहरों के ऊपर ड्रोन भेजते हैं। लेट अस टेल देम, ये पाकिस्तानी कौम डरने वाली नहीं है, ये परेशान होने वाली नहीं है। ये फ़ौज आपकी खड़ी है, इस फ़ौज के इर्द गिर्द, इसके आगे पीछे दाएं बाएं, इससे बढ़कर इस मुल्क के अवाम खड़े हैं। कुछ भी नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। और हमेशा हक़ की फतह हुई है और हमेशा हक़ की फतह रहेगी। सत्य।
आपको जनरल शरीफ साहब ने पूरी तफसील दिखाई है और ये मुंह बोलता सबूत है और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि उन्होंने भी सेकंड किया कि ये या तो हसीमत को छुपाने के लिए जो इनके 5 फाइटर गिरे परसों रात और फिर कल एक कुक्ड अप स्टोरी के तौर के ऊपर कि जी हमारे इतने जगहों के ऊपर पाकिस्तान ने हमला कर दिया है। भाई अगर हमला किया तो वो उसके कौन सा एविडेंस है? हमने तो पहलगाम का भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि एविडेंस ले आएँ और इंडिपेंडेंट, ट्रांसपेरेंट, न्यूट्रल, इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन हो जाए। तो अभी भी अगर कुछ था तो आपको चाहिए था कि आप दुनिया को दिखाएं वो सारा एविडेंस। ये तमाम कुक्ड अप स्टोरीज़ हैं और अल्लाह खैर करे इंशाअल्लाह। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कौम बहादुर हमारी कौम है और बहादुर ही हमारी अफवाज पाकिस्तान है। तो इंशाअल्लाह जो सेंटिमेंट्स हैं और जो आपकी दुआएं हैं वो उनके साथ और अल्लाह ताला की मेहरबानी से फ़तह नुसरत इंशाअल्लाह पाकिस्तान के मुकद्दर में है। आपके अफवाज पाकिस्तान आपको कहीं भी लेट डाउन नहीं करेंगी और इंशाअल्लाह आप सुकून और चैन के साथ अपना रहें और आपकी ज़िंदगी और आपकी जो प्रॉपर्टी है वो अल्लाह ताला के फजल व करम से इस मुल्क में उसकी अल्लाह ताला ने हिफाजत की है और उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी जो हुकूमत की और जो अफवाज पाकिस्तान की है वो पूरी तरह निभाएंगे। बहुत शुक्रिया।